Assalamu alaikum everyone. Going to the next part of electrochemistry. In previous session we have solved numericals based on cell potential calculation, that is using Nernst equation. We'll continue. We'll be applying the same. We'll be using the same Nernst equation to calculate equilibrium constant. And another part what we are going to discuss here is the standard free energy change and electrochemical cell, that is a relationship here, that is standard free energy change and standard cell potential, and we'll do numericals on that also. Okay, electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction. We know that whenever you talk about galvanic cell, there is spontaneous redox reaction takes place, converting the chemical energy into electrical energy, right? So that time, if you talk about the work done, whatever electrical work done will be there or electrical energy will be there, you can calculate it by taking the product of EMF of the cell, that is E cell or E naught of cell, and it should be multiplied with the quantity of charge passed, the electrical charge, that is electrical work is equal to the product of EMF of the cell and electrical charge denoted by Q, which flows through the circuit. So electrical charge Q is calculated by the number of electrons flowing multiplied by the charge carried by that electrons. Q को हम calculate करने के लिए formula use करते हैं, Q is equal to NF. N stands for number of electrons flowing and F stands for Faraday. How many coulombs of charge or how many Faraday of charge that electrons are carrying. तो ये इससे आपको मिलेगा Q वैल्यू. Q वैल्यू EMF से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा. ओके, गैल्वेनिक सेल में मैक्सिमम वर्क डन अगर हासिल करना है, if you want to get maximum work done in a galvanic cell, that time whatever charge we are passing, it should be passed in reversible manner, right? तो इससे आपको जो है वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा, और whatever complete maximum work done will be there, it will be obtained in the form of the decrease in free energy. ओके, मतलब यहाँ पे अगर आपको जो है डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है तो हम ये रिलेशनशिप लेते हैं, राइट? दैट इज इफ यू वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, charge has to be passed reversibly. If n is the number of moles of electrons, quantity of electric charge is q, and delta g naught is standard free energy change, that time the work done is represented as delta g naught is equal to minus w, or we go with the final relationship here, delta G naught is equal to minus NF E naught of cell, right? इस रिलेशनशिप से हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. N is the number of electrons transferred or involved in the reaction. F is Faraday's constant, whose value will be given in the question, or you can take up a round off value 96,500 coulomb per mole. This is a Faraday's value. 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. E naught of cell is standard EMF of the cell or standard cell potential, right? अब यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये पूरे वैल्यूज आपको पॉजिटिव रहना है. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव रहेगा वैल्यू. फैराडेज कांस्टेंट ये भी पॉजिटिव नंबर है. अब डिपेंड करता है ई नॉट ऑफ सेल. अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है तब आपको डेल्टा जी नॉट, ये पूरा प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और ये साइन नेगेटिव रहेगी, तब डेल्टा जी नॉट क्या रहेगा? नेगेटिव. मीन्स प्रोसेस, द गैल्वेनिक सेल विल बी फंक्शनिंग, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. तो कभी भी डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव चाह रहे हैं तो ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होना ज़रूरी है. ओके, अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव रहेगा, एंड दैट प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दैट गैल्वेनिक सेल. वो आप कंस्ट्रक्शन गैल्वेनिक सेल का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सेल रिएक्शन ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? डेल्टा जी नॉट आपको पॉजिटिव मिल रहा है. क्यों मिल रहा है? ई एम एफ इज नेगेटिव, राइट? डेफिनेटली दैट सेल विल नॉट फंक्शन.
Okay, so we'll go with some numericals based on equilibrium constant as well as this delta G naught calculation. Now the first one, calculate equilibrium constant of the reaction Cu plus 2Ag plus gives Cu2 plus 2Ag. सेल रिएक्शन दिए हैं, कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसमें, और आपको ई नॉट ऑफ सेल मेंशन किया गया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, राइट। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द के वैल्यू। ओके, तो सोल्यूशन देखेंगे क्या होता है इसका। फर्स्ट फॉर्मूला लिख दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करे थे। यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन वी केम डाउन टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, log of k is equal to n E naught of cell divided by 0.059, right? Log of k is equal to n into E naught of cell divided by 0.059. यहाँ पे n क्या होता है, number of electrons taking part in the reaction. E naught of cell standard EMF है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। आपको एन क्या है इस रिएक्शन को देख के फाइंड आउट करना है। एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन देखो, कॉपर Cu2+ बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ओके, और Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके ऊपर जो भी चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल एटम बन जाता है Ag। See, this is anodic reaction where oxidation is taking place. This is cathodic reaction where reduction is taking place. How many electrons are lost over here is 2. And how many electrons are gained here? 1. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे 1, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन इम्बैलेंस्ड है। तो इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है ताकि लॉस और गेन इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस है तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको 1 से। इससे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन ऐड अप करो आप, ये वैल्यू आपको मिलेगा, ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। अब देख सकते हैं कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 2। यहाँ पे 2 लॉस हो रहे थे और यहाँ पे 2 गेन हो गए। सो n वैल्यू विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2, राइट। या फिर आप यहाँ पे इक्वेशन देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू, क्योंकि मैं इससे पहले भी बोला हूँ क्लास में, मेटालिक एटम आयन में कन्वर्ट कर हो रहा है और आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली उनके आयोनिक चार्जेस को आप मल्टीप्लाई कर लो। Ag+1, copper 2+2, 2 1s are 2, you will get the value of n, ठीक है। सो n वैल्यू यू हैव टू टेक इट एज 2। सॉल्व करेंगे, n वैल्यू लेंगे 2, EMF वैल्यू दिए हैं 0.46 डिवाइडेड बाय 0.059, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.46 करो 0.92 आएगा डिवाइडेड बाय 0.059, दैट इज इक्वल टू 0.92 डिवाइडेड बाय 0.059 करो, आपको आंसर आएगा यहाँ पर 15.5932, 15.5932। दिस इज व्हाट यू गॉट इज log of k। आपको कैलकुलेट करना है अभी k, ओके। तो k कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू लॉग, राइट साइड में शिफ्ट करो, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 15.5932, 15.5932, ओके। अब यहाँ पे एंटी लॉग वैल्यू देखना है इस नंबर का, तो एंटी लॉग देखते वक्त लॉग का अपोजिट मेथड, पहले आप लॉग टेबल में इस नंबर का 90 सा पार्ट देखेंगे, बाद में आप इसको पावर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में
59 यानी कि 0.59, 59 अंडर 3 देखना है, 59 अंडर 3 और मीन डिफरेंस कॉलम को सॉ रहना है 2। देखते हैं 59 एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल में 59 अंडर 3 0 1 2 3 कितना वैल्यू आता है देखो 3917। 59 अंडर 3 इज 3917 और उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम में सेकेंड कॉलम में वैल्यू कितना है देखना है, इट इज हाउ मच 2, राइट। तो ये मीन डिफरेंस वैल्यू जो भी हो मिलेगा आपको इस वैल्यू में ऐड अप करना है। तो 3917 प्लस 2, 3917 plus 2, that is becoming 3919. So the anti-log value you got is 3919. तो उसको 3919 को सिंपल वे में कुछ करना नहीं है, 3919 लिख दो, पहले नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस करो इनटू 10 रेज़ टू, ये जो भी वैल्यू है उसको आप पावर बना देंगे, राइट। सिंपल वे में फिनिश कर लो एक एंटीलॉग पार्ट। k इज इक्वल टू इस नंबर का एंटीलॉग टेबल में वैल्यू देखो, आपको 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद में आप पहले नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू, यहाँ पे जो भी नंबर है नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है आप यहाँ पे पावर बना देना। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so this is the way you have to solve the numericals on equilibrium constant. Going to the next question, calculate equilibrium constant for the cell reaction. Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. E naught of cell फिर यहाँ पे भी दिए 1.1 वोल्ट। ओके, log of K is equal to n into E naught of cell divided by 0.059। n वैल्यू देख सकते हैं, जिंक Zn2 प्लस बन गया, Cu2 प्लस Cu बन गया, तो लॉस एंड गेन इक्वल टू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सो n वैल्यू डायरेक्टली यू कैन टेक 2। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 नहीं करना है, रिमेंबर जब लॉस और गेन इक्वल रहता है आप डायरेक्टली वही वैल्यू लेना है। ओके, जब लॉस एंड गेन चार्जेस अगर अलग अलग है तब आप मल्टीप्लाई करो, चार्जेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। So when the charges are same, don't multiply. Whatever charge they carry, that will itself will become the n value. अगर चार्जेस अलग अलग है तब आप मल्टीप्लाई करके n वैल्यू फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे n वैल्यू ये जो भी चार्ज है वही डायरेक्टली लेना है। सो n इज इक्वल टू 2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.059, दैट इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059। 2.2 divided by 0.059 करो, you will be getting 37.2881, 37.2881। ओके, अब इसका एंटीलॉग देखना है, दैट इज k इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 37.2881, यानी कि 2881 का आपको एंटीलॉग वैल्यू देखना है। ओके, फिर से एंटीलॉग टेबल को जाएंगे, एंटीलॉग टेबल में 28 अंडर 8 देखना है, 28 अंडर 8 मीन डिफरेंस 1, तो ये 28
अंडर 8, यानी कि ये पहला कॉलम 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 आ गया, 1941। मीन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट कॉलम 1 है, तो 1941, दिस इज द वैल्यू 28 अंडर 8, वैल्यू इज 1941। ओके, सो राइट डाउन, कैसे लिखना है, सेम 1941 पहले नंबर के बाद डेसिमल इंटू 10 रेज टू 37, 10 रेज टू 37, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, see 10 raised to 37, very large value of equilibrium constant. 10 raised to 37 is a very large value, means this reaction is highly spontaneous. Okay, going to the next question. Again, calculate the equilibrium constant of the reaction at 298 Kelvin. The cell reaction is given to you, Mg plus 2Ag plus gives Mg2 plus 2Ag. Okay, E naught of cell is also given 3.16. तो कैलकुलेट करोगे, log of k is equal to n E naught of cell divided by 0.059. CET नीट में भी अगर इसके क्वेश्चंस आ गए तो यहाँ पे आप 0.059 के बदले 0.06 कर लो, ओके, राउंड ऑफ कर लेना है। और लॉग या एंटी लॉग कैलकुलेशन की बात आती है तो वहाँ पे लॉग बुक तो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से आपको जो ऑप्शंस देते हैं सिर्फ फाइनल आंसर से पहले जो हम एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर वो लिख रहे हैं वो वे में देंगे, या फिर 10 रेज टू पावर के हिसाब से देंगे। ओके, लॉग वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू कुछ भी आ सकता है, लेकिन 10 रेज टू पावर जो रहेगा वो आपको करेक्ट कौन से ऑप्शन का है वो फाइंड आउट करके उसको सेलेक्ट करना रहता है। ओके, नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल एन वैल्यू, मैग्नीशियम का चार्ज 2 है, मैग्नीशियम से Mg2+ बन रहा है, Ag+ से Ag बन रहा है, तो आयन से मेटल, मेटल से आयन है, तो आप डायरेक्टली इनके चार्जेस को मल्टीप्लाई करो, आपको n वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि अपोजिट अलग अलग चार्जेस है, ये 1 है और ये 2 है, 2 1s are 2, n वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट ऑफ सेल कितना दिए हैं 3.16 डिवाइडेड बाय 0.059, कितना होगा 2 into 3.16, we will be getting 6.32 divided by 0.059, divided by 0.059, we will be getting 107.1186, 107.1186, right? Now k value is equal to anti-log of 107.1186। अभी क्या करना है आपको, एंटी लॉग टेबल में 11 अंडर 8 मीन डिफरेंस 6, ये क्या है चेक करना है, राइट। 11 अंडर 8 मीन डिफरेंस 6, ये है 11 अंडर 8th कॉलम, यहाँ पर है 13 12, right, 11 under 8th column is 13 12, mean difference 6, 1 2 3 4 5 6 2, तो 13 12 plus 2 कर लेना है, 13 12 plus 2 is 13 14, okay, so 13 14 is the log value, anti log value, sorry, तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे।
13 14 हो गया फाइनल आंसर। सो 1.314 कर लेना है इंटू 10 raised to 107. This is the answer. Equilibrium constant is equal to 1.314 into 10 raised to 107. Okay. Next question. Standard electrode potential of Daniell cell is 1.1 volt. Standard electrode potential बोल के दिए, it is nothing but standard cell potential itself. It is 1.1 volt. Write the net cell reaction. Also calculate the standard Gibbs free energy change for the reaction. Okay. E naught of cell दिए हैं क्वेश्चन में 1.1 volt. राइट द नेट सेल रिएक्शन। डैनियल सेल में जो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है वो आपको लिखना है। हमको पता है जिंक किसके साथ कंबाइन होता है, ये बनता है Zn2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। एनोड के पास, कैथोड के पास क्या होता है Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन आयोन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, so you will be having zinc plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu, right? So this will be the net cell reaction taking place in Daniell cell. अब आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करना है, राइट। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दैट इज डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पे अब n वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं 2, -2 इंटू f वैल्यू कांस्टेंट होता है, याद रखो ये वैल्यू 96,500 कूलम मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में दिए 1.1 वोल्ट। ओके, तो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, you will be getting the answer as minus 212,300, 212,300। यूनिट यहाँ पे क्या आएगा 96,500 कूलम है और ये 1.1 वोल्ट सीवी। नाउ एज डेल्टा जी नॉट इज देयर, इसको हम किलो जूल या जूल में मेंशन करना रहता है। 1 कूलम वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल, 1 coulomb volt will be equal to 1 joule. This is, you can write it as in terms of joule. CV को replace करके हम joule लिख देंगे। So क्या बनेगा ये -212,300 joule या फिर किलो जूल में -212.3 किलो joule. This is the answer, right? So finally when you write the delta G naught value, it should be either mentioned in joule or in kilojoule. Okay, negative value मिल रहा है means the process is spontaneous. Okay, so this is the way you can calculate delta G naught. 2 marks या 3 marks के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। आपको ओवरऑल E naught of cell क्वेश्चन में देते हैं, फैराडेज वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली 96,500 लेना है। n वैल्यू आप केयरफुली फाइंड आउट करना है, बस पूरा आंसर यहाँ पर कैलकुलेशन इजी है, सिर्फ आपको n वैल्यू डिसाइड करता है। आप करेक्ट लेंगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा, राइट। सी दिस वन नाउ, अगेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, ई नॉट ऑफ सेल दिए हैं और फैराडेज वैल्यू भी दिए हैं 96,500 कूलम। ओके, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब n वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो स्पीशीज पूरे चार्ज्ड है, मेटल से
आयन या आयन से मेटल नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आयन आयन में ही चेंज हो रहा है। तो केयरफुली आप इसको साइड में रिएक्शन लिख के देखो, Fe2+ से ये Fe3+ बन रहा है, राइट, बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Ag plus is gaining 1 electron and becoming Ag. तो लॉस एंड गेन अब इक्वली है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन। सो n वैल्यू डायरेक्टली इन हियर यू कैन टेक इट एज 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, राइट। सो n वैल्यू इज 1 माइनस 1 इंटू 96,500 इंटू 0.03, 96,100 इंटू 0.03 कितना आएगा? आंसर आपको आएगा -2895। इसको आप पहले जूल में लिख दो, बाद में आप किलो जूल में मेंशन करो। किलो जूल में मेंशन करने के लिए 3 डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ आप शिफ्ट हो जाएंगे, -2.895 किलो जूल, राइट। नाउ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, सेल रिएक्शन दिए हैं, ई नॉट ऑफ सेल भी दिए हैं। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, आपको गिब्स एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। ओके, क्या आ जाएगा? गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करेंगे पहले, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरे स्पीशीज Fe3+ I माइनस Fe2+ I2 है, तो बेटर आप केयरफुली साइड में सेल रिएक्शन एनोडिक और कैथोडिक लिख के फाइंड आउट करो क्या एन की वैल्यू आ जाएगी। Fe3+ लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे Fe2+ है, चार्ज कम हो रहा है, राइट, मीन्स देर इज रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन Fe3+। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कैथोडिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। Fe3+ से Fe2+ कब होगा? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब I माइनस से I2, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे कितना है? 0। देर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो I माइनस इज बिकमिंग I2, पहले इस तरह लिखो आप, राइट। I2 है, यहाँ पे I है, तो आप 2I माइनस लिख दो, ठीक है। 2I माइनस लिखेंगे तो आप एटम्स बराबर हो जाएंगे। 2I minus is becoming I2 by the loss of how many electron? 2 electron, right? It will lose 2 electron. Okay. अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल। अब जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 2Fe3+ plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2, ठीक है। तो what is the n value now? How many electrons totally it has taken place is 2. So n value is equal to 2 minus 2 into 96,500 into E naught of cell question में दिए हैं 0.236. So 2 into 96,500 into 0.236. You will be getting the answer as minus 45,548 joule.
or you can write it as minus 45.548 किलो जूल. ओके, ये हो गया अपना डेल्टा जी नॉट वैल्यू, राइट. अब चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए n मालूम हो गया, अब 2 है, ई नॉट वैल्यू भी पता है, कैलकुलेट कर लो. log of k is equal to n e naught of cell divided by 0.059, that is equal to n value 2 मिला, e naught value 0.236 है, divided by 0.059. okay, so log of k is equal to कितना आता है देखो, 2 into 0.236, you will be getting 0.472 divided by 0.059 divided by 0.059. Answer is 8, right? Answer is 8. यानी कि ये क्या है, log of k मिला. अब आपको k कैलकुलेट करना है. k is equal to anti log of 8, right? अब 8 के बाद और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल होता है और ये बाकी के पूरे क्या रहेंगे, जीरोस, राइट. सिर्फ जीरोस रहेंगे. तो जब भी आपको ये होल नंबर एंटी लॉग देखना रहता है, इजी वे में सीधा सीधा आप जो है क्या करना है, 10⁻⁸ फिनिश. क्योंकि 8 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद पूरे जीरोस है. एंटी लॉग ऑफ 0 होता है 1, राइट. एंटी लॉग ऑफ 0 होता है 1, यानी कि if you check the zero antilog you will get answer as like this, 1000. पहले नंबर के बाद आप डेसिमल प्लेस करते हैं, इनटू ये जो भी नंबर है आप पावर बनाते हैं, 10⁻⁸. सो इतना सब करने के बजाय जब भी आपको जो है कोई होल नंबर का एंटीलॉग लेना रहता है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, k is equal to antilog of 8 is nothing but 10⁻⁸. So this is the answer. Okay, suppose antilog of 10 आया, 10⁻10 will be the answer. Antilog of 5 आया सिर्फ 10⁻5, राइट. हाँ, ये और बात है कि नेगेटिव नंबर आए तो थोड़ा को कैलकुलेट करना रहता है, तो उसको बार फॉर्म में चेंज करना रहता है. बट whenever you are having whole numbers, positive whole numbers, directly you write the answer as 10 raised to that number. Okay.